السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہدید سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے باہر اور دیگر مقامات پر وقف ایکٹ کے خلاف ہوا شدید احتجاج، مسلمانوں نے وقف قانون کو واپس لو کے بلند کیے نعرے۔ وقف ایکٹ کو مسلمان ہرگز قبول نہیں کر سکتے، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد اویسی کی آج میڈیا سے بات چیت۔ راہل گاندھی کو جیل بھیجنے مرکز کی مودی حکومت کر رہی ہے مسلسل کوشش، مرکزی حکومت کو ناکامی ہوگی، تلنگانہ حکومت کی وزیر سیتکا کا بیان۔ ریونت ریڈی کا جاپان دورہ جاری، انڈیا جاپان فرینڈشپ پروگرام میں شرکت، تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے کی دی دعوت۔ سابق چیف منسٹر KCR کی قیادت میں BRS پارٹی کا ہوا اجلاس، 27 اپریل کو ورنگل میں ہونے والے سلور جوبلی تقریب اور جلسے عام کی تیاری کا لیا گیا جائزہ۔ ہمیں نئے وقف قانون کے جن نکات پر سنگین اعتراض تھا اسی کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، مجبوراً عدلیہ کا رخ کیا گیا، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ اور غزہ میں جنگ بندی اور فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے حماس ہے تیار، اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم، حماس کے قائد خلیل الحیہ کا بیان۔ ہیڈ لائنز سامنے دیکھیے اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں آج جمعے کی نماز کے بعد تاریخی مکہ مسجد کے باہر چار مینار کے قریب وقف ایکٹ کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا۔ نمازیوں کی بڑی تعداد نے ترمیمی قانون پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں جیسے بھولک پور، مشیرآباد سمیت دیگر مقامات پر بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور مسلمانوں نے وقف ایکٹ کو مسلمانوں کے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ واپس لینے کے لیے ایک خاموش احتجاج منظم کیا گیا تھا، جس میں ہمارے سبھی ساتھیوں نے اس پروٹیسٹ میں حصہ لیا۔ میں آج کے اس موقع پر امت المسلمین کے سبھی لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ جب تک ریاست میں جو بھی احتجاج یہاں پر وقف ترمیم بل کے خلاف منظم کیا جائے گا اس میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ ابھی تو سپریم کورٹ میں اس کی عرضی کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ پہلے سے ہی کامیابی ہمارے درمیان میں ہے، لیکن ہمیں خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں یا اوور کانفیڈنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سووں کی تعداد میں وہاں پر پٹیشن ڈالے گئے، اس کی سماعت کے لیے مرکزی حکومت کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی عرضی داخل کرے، لیکن ریاست کے تلنگانہ کے سارے مسلمان جب تک کہ یہ وقف ترمیم بل واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ضرور اس میں حصہ لیتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ترمیم بل کے خلاف اپنا احتجاج منظم کریں۔ میں آخر میں تمام اہلیان محلہ مشیرآباد بھولک پور کے سبھی لوگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے سائلنٹ پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہوئے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے سائلنٹ پروٹیسٹ منعقد کیا گیا، جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے مسجد حضرت بلال بھولک پور مشیرآباد کے روبرو سائلنٹ پروٹیسٹ وقف ترمیمی بل کے خلاف، وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ منعقد کیا گیا، جس میں ہمارے تقریباً رفقا نے شرکت کی۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروٹیسٹ میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد اویسی نے کہا کہ وقف قانون کو مسلمان ہرگز قبول نہیں کر سکتے، عدلیہ میں اس پر بحث جاری رہے گی۔ مرکز کی مودی حکومت صرف اور صرف وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے یہ قانون لائی ہے۔ پارٹی کا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ پورا قانون کالا قانون ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، چاہے آرٹیکل 14 ہو، 15 ہو، 25 اور 26 اور 29 ہو۔ تو یہ جو انٹرم آرڈر ہے اس سے ہٹ کر ہم اس کو کاشیسلی دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قریب 48 امینڈمنٹس ہیں۔ ایک امینڈمنٹ ایسا ہے کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں لیمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ لینڈ گرابرز ہیں یا انکروچرز ہیں وہ مالک بن رہے ہیں، اور پھر وقف ایویکیو پراپرٹیز جو ہے وہ خاص طور سے دیش میں پوری جگہ پر اور پنجاب ہریانہ میں بہت ہے، وہ اب گورنمنٹ کسٹوڈین میں چلے آئیں گے، تو وقف بورڈ سے ہم اس کو لوز کر رہے ہیں۔
तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ब्लैक लॉ है जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि ज्यादा पिटीशन तेलंगाना हुकूमत की वजीर सीताका ने कहा कि राहुल को जेल भेजने मरकज की मोदी हुकूमत मुसलसल कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल का कोई कसूर नहीं है और सिर्फ सियासी मकासद के लिए नेशनल हेराल्ड मामले को उछाला जा रहा है। It is a revenge. It's revenge, BJP revenge. They from past few years they tried to put Rahul Gandhi in jail on the name of some Modi naam par some allegations of Rahul Gandhi's rise. That time they imposed one case. It is false. That time they are trying to expel. They are already expelled from parliament also. They are pulled out his quarters also, government quarters also. So people well known, and court also objected that is not good. And again they are bring Herald case. Herald paper is for the freedom fight movement opinions spreaded within country. That is a good freedom fighters paper, voice paper. But now there is no transaction, there is no money transaction, there is no anything, there is no money laundering, there is no transaction with anyone. It is the freedom fighters paper. Some days back it was faced some crisis to run that paper. That time our Congress leaders hand over and run with fair, no money laundering, no money transaction, no anything. Only Rahul Gandhi is raising his voice, voiceless, on behalf of voiceless people. He is questioning, you are not following. तेलंगाना आएँ और चाइना +1 का मुकाम मुतबादिल के तौर पर इख्तियार करें, सरमाकारी तरक्की और कामयाबी हासिल करें, हैदराबाद घर जैसा महसूस होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नारा अपने जापान दौरे में दिया। इंडिया जापान इकनॉमिक पार्टनरशिप रोड शो में इनकॉर्पोरेशन की उन्होंने हौसला अफजाई की। रेवंत रेड्डी ने टोक्यो रोड शो में जापानी सरमाकारों को खुशामदीद करते हुए यकीन दिलाया कि वो तेलंगाना में सरमाकारी करेंगे तो भरपूर फ़ायदा हासिल होगा और तमाम कामों में मुमकिन आसानी फराहम की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत का पूरा ताउन रहेगा। टोक्यो में मुनक़िदा इस तकरीब में जापानी कारोबारी बरादरी के लगभग 150 अफराद ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने राइजिंग तेलंगाना का नारा दिया और लोगों को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए दावत दी। बीआरएस के सरबराह केसीआर की क़यादत में पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें 27 अप्रैल को वरंगल में होने वाले सिल्वर जुबली तकरीब और जलसे-आम की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। केसीआर की दख्तर कविता समेत दीगर पार्टी कायदीन ने इस मीटिंग में शिरकत की। ख़वातीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम करने समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। केसीआर ने इजलास के सिलसिले में बीआरएस कायदीन को हिदायत दी और बेहतर इंतज़ामात के हवाले से अहकामात जारी किए।
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुश्किल का सामना है। ईडी की हैदराबाद यूनिट ने उनके 27.5 करोड़ रुपए के शेयर और डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड की 377 करोड़ रुपए की ज़मीन को क्विड प्रो सरमाकारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आर्जी तौर पर जब्त किया है। इस ताल्लुक से DCBL ने कहा कि जब्त करदा मिल्कियत की कीमत 793 करोड़ है। काबिल ज़िक्र है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साल 2011 में ही CBI की जानिब से दर्ज FIR से मुताल्लिक़ है, जिसमें DCBL की जानिब से भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में सरमाकारी की गई थी। यानी मामला दर्ज होने के तकरीबन 14 साल बाद जब्ती की एक कार्रवाई हो रही है। ईडी के मुताबिक यह सरमाकारी जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों में 95 करोड़ रुपए के पेमेंट की शक्ल में की गई। शहर के तारनाका जंक्शन को 15 दिनों के लिए दोबारा खोला गया है और इस फैसले से उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लालापेट इलाके की जानिब ट्रैफिक का रास्ता आसान होगा। तारनाका जंक्शन पहले बंद था। आज जुमे को आजमाइशी बुनियाद पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और लालापेट के दरमियान दोनों सिमतों में गाड़ियों के लिए इसे दोबारा खोल दिया गया है। शहरियों ने इससे राहत की सांस ली। जॉइंट DCP ट्रैफिक हैदराबाद जोएल डेविस ने बताया कि ये ट्रायल रन 15 दिनों तक तारनाका में चलाया जा रहा है। सियासत हब की जानिब से 19 अप्रैल हफ्ता शाम 3 बजे इदारे सियासत के हाथे में सेमिनार होगा, जिससे मुख्तलिफ माहिरीन खिताब करेंगे। सोल्यूशन 3X मेडिकल कोडिंग के ताउन के साथ नौजवानों को अमरीकी हेल्थ केयर में रोज़गार के मौक़े समेत इससे जुड़े दीगर मौज़ूआत पर तफसीली तौर पर इस सेमिनार के ज़रिए वाकिफ़ करवाया जाएगा। फार्मेसी और साइंस के तलबा और तालिबात इसमें शिरकत कर सकते हैं। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज शाम तूफ़ानी बारिश हुई, तूफ़ानी हवाएं भी चली और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि 18 अप्रैल से हैदराबाद समेत कई अजला में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस पेशगोई के पेश नज़र येलो अलर्ट भी जारी किया गया था और तवक्को के मुताबिक भारी बारिश हुई। शहर के कई मुकामात पर बारिश से ट्रैफिक जाम की इत्तलात हैं, जबकि बिजली की सरबराही भी चंद इलाकों में मुनक़ता होने की इत्तलात मौसूल हुई है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और अरबी खबरों की जानिब। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैं नए कानून के जिन नुकात पर संगीन एतराज़ था और जो वक्फ अमलाक के लिए इंतहाई तबाकुन है, हमें खुशी है कि वकला की पूरी बहस इन्हीं नुकात पर मरकूज़ थी। ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस संजू खन्ना ने जिन मौज़ूआत पर सख्त तबसरा किया वो न सिर्फ अहम है बल्कि हमारे इस रुख की तस्दीक करते हैं कि हम नए कानून की मुखालफत करने में पूरी तरह दुरुस्त है। उन्होंने वकला का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वक्फ और नए वक्फ कानून से मुताल्लिक़ अदालत में पूरी तैयारी के साथ बहस की। ख़ासतौर पर उन्होंने कपिल सिब्बल का इशारा दिया जो कि तारीख़ी बहस करते रहे। साथ ही मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद लोगों, तंजीमों और लीडरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो न सिर्फ वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई से कौन इनकार करेगा कि कानून बनाने का इख्तियार हुकूमत को होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जमहूरी तरीके से इसकी मुखालिफत करना भी ज़रूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि नए कानून की जिन दफ़ात पर चीफ जस्टिस ने फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की, हम शुरू से ही इसकी मुखालिफत करते आए हैं। उन्होंने कहा कि कानून की दफ़ात हमारे वक्फ अमलाक के लिए बहुत तबाकुन है। अफसोस की बात है कि हमारी बात सुनी नहीं गई, इसलिए अदालत का रुख मजबूरन अपनाना पड़ा। और वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2000 समाअत के हवाले से मुसलसल सियासी रद्दमल भी सामने आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी अपना रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वही हुआ जो किसानों के कानून में हुआ था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि कुछ दफ़ात पर पाबंदी लगना चाहिए, न कि पूरे कानून पर। अदालत ने इशारा दिया है कि वो इन दफ़ात को ख़त्म कर सकती है। आइए देखते हैं सलमान खुर्शीद का ये रद्दमल। Normally, parliamentary laws are not stayed. Normally, court says, if something wrong is done in this law, then you come to us. But in advance, we are not going to stay it. It's in very special circumstances that the court gets persuaded to stay. Now, in this case, like in the farmers' laws, the farming laws, the laws had been stayed. Similarly, in this case, the court felt that this required to be stayed, or some aspects required to be stayed. Not the entire law, but some aspects required. Aspects that had some urgency and that had some concern that if they are allowed to happen, then reversing them will be a very serious problem, etc. So there they pushed and they gave an indication that they would stay them. But the Solicitor General said, I am conceding that till the final hearing, etc., we won't
rely on these provisions, including members to be nominated to the boards and members to be nominated to the council, non-Muslim members who would be in majority under the new law in both organizations, in the council as well as the state boards, etc. Then there's an issue, which is a very interesting issue of waqf by user. A waqf that is not created by deed, but because how people have used that property in some religious manner, that becomes the waqf by user. So the court also said that don't do anything to disturb waqf by users that are existing waqf by users till we are able to hear this whole matter. So the court, I think, felt that this is far-reaching consequences from this legislation. Let us see if we can contain any damage that can be caused so that no irreversible thing happens and no damage is caused. While we hear this matter, in a few weeks we will hear the matter, then we'll decide. So are you hopeful for some next coming? I'm sure that looking at how the court reacted and how the arguments were received, I think that it's a promising case, and that there should be a happy conclusion at the end of the hearing in this matter. So since besides the so how do you interpret this order in respect to the government? Because government is saying that it was a very useful thing and a very needed thing for the. So that's the point of view. That's the government's point of view. But if that was accepted, then the court would not have interfered. So there's some doubt about the government saying this, that there is some doubt whether what the government is saying is right. But this is not final. This is only an interim order. This is only a temporary attitude that the court has exhibited. Now the government will have a right to come back and explain in greater detail. We will say from our point of view why the government is wrong and government is encroaching upon the rights of people's. कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो अदलिया से इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि वक्फ कानून दस्तूर के खिलाफ है और ये इब्तिदाई रोक एक बड़ी कामयाबी है। धन्यवाद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है।
उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अमेरिका में हिंदुस्तानी तलबा के खिलाफ सख्त इमिग्रेशन कार्रवाइयों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 327 बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख किए गए, इनमें से आधी तादाद का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, जो बासे तशवीश है। जयराम रमेश ने कहा कि AILA की रिपोर्ट हिंदुस्तानी तलबा के मुस्तक़बिल पर संगीन सवाल खड़े करती है। अगर इन तलबा के वीज़ा की मनसूखी की वजूहात वाज़ेह, मुनसिफ़ाना और शफ़ाफ नहीं है तो हुकूमत हिंद फ़ौरी तौर पर इस मामले में अमरीकी हुक्काम के साथ रुजू करे। जयराम रमेश ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुतालबा किया कि वो इस रिपोर्ट का संजीदगी से नोट लें और इन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन सिफ़ारती कदम उठाएँ। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब AILA ने अपनी तफसीली पॉलिसी ब्रीफ में दावा किया कि अमेरिका में जारी कैच एंड रिवोक नामी प्रोग्राम के तहत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े बगैर मुनासिब बुनियादों के मनसूख किए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने गाज़ा में जाम पैकेज पर फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपनी तैयारी का इआदा किया। एक ऐसा मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों की मुत्तफ़िक़ा तादाद के बदले इसराइल के ज़ेर हिसाब तमाम कैदियों की रिहाई, गज़ा पट्टी से ज़ालिम इसराइली फ़ौज का मुकम्मल तख़लिया, तामीर नौ का आगाज़ और नाकाबंदी का ख़ात्मा शामिल है। हमास क़ायद खलील अल-हया ने यह तजवीज़ दी। पेश है इस हवाले से सियासत TV की आज की ये अहम रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने गाज़ा में एक जामे पैकेज पर फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपनी तैयारी और अज़म का इआदा किया। एक ऐसा मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी कैदियों की मुत्तफ़िक़ा तादाद के बदले इसराइल के ज़ेर हिरासत तमाम कैदियों की रिहाई, गज़ा पट्टी से ज़ालिम इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनख़ला, तामीर नौ का आगाज़ और नाकाबंदी का खात्मा भी शामिल है। ये बात गज़ा पट्टी में हमास के रहनुमा खलील अल-हया की एक वीडियो टेप शुदा तकरीर में सामने आई है। हमास कायद ने कहा कि हमास की क़यादत और मुज़ाहमती धड़े गज़ा पट्टी के खिलाफ वहशियाना जारहियत और तबाही की जंग को रोकने के ख़्वाह हैं और इस मकसद के हसूल के लिए 1.5 साल से ज़्यादा मुश्किल मुज़ाकरात किए, यहाँ तक कि हम 17 जनवरी को 3 मराहिल के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर पहुँच गए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पहला मरहला मुकम्मल होने से पहले ही मुआहदे के खिलाफ हो गई। हमास ने कहा है कि नेतन्याहू और उसके इंतहा पसंद हुकूमत के पैदा करदा बहरान से निकलने के लिए सालिसों ने हमसे दोबारा राब्ता किया। हमने रमज़ान के आखिर में उनकी तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया, इस यकीन के बावजूद कि नेतन्याहू अपने सियासी मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग और जारहियत जारी रखने पर मुसलसल इसरार कर रहे हैं। खलील अल-हया ने वज़ाहत की कि सालिसों की तजवीज़ पर नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल एक ऐसी तजवीज़ थी जिसमें नामुमकिन हालात मौजूद थे और ये जंग के खात्मे या गज़ा पट्टी से इनख़ला का बास नहीं बनेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुज़ाहमत और उसके हथियार काबिज़ दुश्मन के वजूद से जुड़े हुए हैं और ये फ़लस्तीनी अवाम का फितरी हक़ है। खलील अल-हया ने इस बात की निशानदही की कि नेतन्याहू के जुज़वी मुआहदे अपने कैदियों की कुर्बानी की कीमत पर भी मुसलसल नस्लकुशी के उनके एजेंडे का हिस्सा है। हमास इसका हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेगी। हमास ने कहा है कि अमरीकी कासिद एडम होलर के इस मौक़िफ़ का खैर मक़दम किया जाता है कि कैदियों और जंग के मसले को एक साथ ख़त्म कर दिया जाए। हमास को हाल ही में गज़ा पट्टी में जंगबंदी के लिए एक नई इसराइली तजवीज़ मौसूल हुई। इस तजवीज़ में 45 दिनों की आर्जी जंगबंदी शामिल है, जिसका मकसद इस अरसे के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी के साथ साथ फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली जंगी कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत करना भी शामिल है। इसराइली तजवीज़ में मुज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने की शर्त रखी गई। इसराइली तजवीज़ की एक बुनियादी शर्त मिस्री इक़दाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तजवीज़ में 10 इसराइली कैदियों को मरहलेवार रिहा करने का मुतालबा किया गया, जिसका आगाज़ जंगबंदी के पहले दिन इसराइली निशात अमरीकी कैदी आइडान अलेक्जेंडर की रिहाई से होगा। इसके बाद के मराहिल में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 120 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 9 इजाफी इसराइली कैदियों की रिहाई और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गिरफ्तार किए गए 1100 से ज़्यादा ऐसे कैदियों की रिहाई भी शामिल है जिन पर कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के बाहर और दीगर मुकामात पर वक्फ एक्ट के खिलाफ हुआ शदीद एहतजाज। मुसलमानों ने वक्फ कानून को वापस लो के बुलंद किए नारे। वक्फ एक्ट को मुसलमान हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी की आज मीडिया से बातचीत। राहुल गांधी को जेल भेजने मरकज़ की मोदी हुकूमत कर रही है मुसलसल कोशिश, मरकज़ी हुकूमत को नाकामी होगी। तेलंगाना हुकूमत की वज़ीर सीतक्का का बयान। रेवंत रेड्डी का जापान दौरा जारी, इंडिया जापान फ्रेंडशिप प्रोग्राम में शिरकत, तेलंगाना में सरमायाकारी करने की दी दावत।
سابق چیف منسٹر KCR کی قیادت میں BRS پارٹی کا ہوا اجلاس 27 اپریل کو ورنگل میں ہونے والے سلور جوبلی تقریب اور جلسے عام کی تیاری کا لیا گیا جائزہ۔ ہمیں نئے وقف قانون کے جن نکات پر سنگین اعتراض تھا اسی کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، مجبوراً عدلیہ کا رخ کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ اور غزہ میں جنگ بندی اور فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے حماس ہے تیار، اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر قائم، حماس کے قائد خلیل الحیہ کا بیان۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔